Gujarat. To my right are the director Shri Veerbhadra Singh Chauhan sir, and to my left is Mrs. Rukhsana Mohammad Rafiq Faroqi, event coordinator, CA Media Group. Today we are with the Honorable Director of Foxes of Hospitality Private Limited in New Delhi, with Mr. Councillor Imam Jafri Sahab. Sir, I would like to welcome you in our program. Thank you, Rafiq sir. And I also would like to put forward my sincere thanks for providing the opportunity to talk with us. Sir, first of all, I would like to know a brief introduction about your good self. For me, Rafiq sir, I am a hardcore hotelier and nothing else. I just know how to operate hotel and how to work for hotel and how to give services. I've done my management way back in 2002 and I've done a lot of work with other hotels. Think of any brand like I worked with Taj, I worked with Hyatt, I worked with Sheraton. I worked with almost major brands, Park as well. But after 10 years, I got the offer from Batra Group to start and operate a hotel. I've done a lot of pre-opening hotels. Pre-opening, I've learned how to start hotel, how to operate hotel. But the first project which I have done for Karma Hospitality, that's Tree House Hotels in Badi. I started there as a GM of the hotel, and I started that particular hotel in 2007. And after the success of Tree House Bhiwadi, I got the offer from Batra Hotel, Srinagar, of Mr. Batra. So I've started done the pre-opening turnkey project for Mr. Batra. That was Batra Hotel Srinagar. From designing logo to everything, and I operated that hotel for 5 years. After working for 5-6 years, I thought to start my own project. So I moved back to Delhi, from where my family is, and we have started a project, Foxes of Hospitality Private Limited. For that, I have taken 1 full year to understand how to work in Delhi and what. I've done the market mapping, I have done the recce of this particular place, where the hotel can do better, and what all the guest needs is, how to generate profits, and how to give great service to guests. So we have started in 2021, we have started a new project, Foxes Hotel in New Delhi. And from last 6 months we have operated, and we have great reviews, we have great revenues as well. And to be true and honest, we are going almost sold out from last 2 months. So hardly any day we have any room empty. So this is something, and it's more of teamwork. We have very good team members who came from Taj, who came from Perlin and other big brands, and they are working with me. They are the part of me. They are like wings for me, and we are just flying because of our team members. Correct. Since, sir, you have taken a lot of responsibility, and I would like to know what is the plan and how will you perform for the progress? Sir, since you have taken a lot of responsibilities, आपके प्लान्स के बारे में, आप किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए। See, हमारी जो प्लानिंग है by year 2022, एटलीस्ट 500 रूम नाइट्स हम रोज़ का सेल करें, हमारे पास हो बेचने के लिए। तो मोस्ट ऑफली एट द एंड इस साल के अंत तक हम 100, अभी इस होटल में 45 रूम्स हैं, प्लस एक 60 रूम्स का एक और होटल जो हम महिपालपुर में बहुत जल्दी खोलने वाले हैं। सारा काम शुरू हो गया है। कोशिश ये रहेगी कि 15 दिसंबर तक उस होटल को हम खोल दें, जो एयरपोर्ट के बगल में ही है। दूसरा हमारा प्लान है कि ऋषिकेश में वी आर कमिंग अप विथ 1 होटल दैट इज़ अगेन, इट्स नॉट अ बिग काइंड ऑफ रिजॉर्ट की तरह है ये।
ये करीब 20 रूम का होटल है। प्लस हम कैलकाटा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह है दीघा, वहाँ पे एक 50 रूम का होटल है। तो ये सारे प्लान हैं कि हम एट दी 2022 के ख़त्म तक एटलीस्ट हम 500 रूम ऑपरेट करें फ्रॉम फॉक्सोसो हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। हमारा दो ये है, या तो हम अपना होटल चलाएं या तो हम किसी का अच्छा होटल हम लें और उसको अपने ब्रांड स्टैंडर्ड के हिसाब से चलाएं, मतलब मैनेजमेंट पे उस होटल को हम चलाएं। तो विज़न तो यही है, और जो हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो काम करने का तरीका है, उससे अगर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो तो हम किसी का भी होटल चला सकते हैं। और हमारा जो एथिक्स है कि हम क्लीन फैमिली होटल चलाएंगे और कुछ नहीं, तो हम उसी एथिक्स पे जाना चाहते हैं। सफाई से काम हो, एवरीथिंग, सब कुछ जो टैक्स हमें देने हैं वो हमें देना ही है। कुछ भी अगर कोई भी इंसान अगर क्लीन काम करना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है अच्छा काम करने के लिए। So that means कट मिनट। fine. Right, sir. I would like to request you, sir, if you could put up some light on the mission and the vision of your project. विजन तो मिशन और विजन दोनों बड़ा क्लियर और साफ दिख रहा है मुझे कि हमें कम से कम जो 2022 तक 500 रूम नाइट करने हैं पर डे, और दूसरा जो हमारा है कि विद एथिकल और फैमिली होटल और एट बजटेड रेट हम लोगों को प्रोवाइड कर पाएँ। ये हमारा मिशन और विजन है हमारे ख्याल से। ज़्यादा बड़ी बातें नहीं बोलूँगा, जो ज़मीन पे हम कर सकते हैं हम वही बातें बोलेंगे, जो हो सकता है वही करेंगे, और जो हम कर सकते हैं हम गेस्ट को भी वही बोलते हैं कि हम ये आपके लिए कर सकते हैं और इस पैसे में हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं। तो उसी हिसाब से गेस्ट ने हमें सिलेक्ट किया है, और हम आज इतनी जल्दी इतना अच्छा कर रहे हैं, वो भी दिल्ली में बैठ कर के जहाँ कंपटीशन कट थ्रोट है। Right. अभी सर जैसे आपने बात की कि फ्यूचर में आप कैलकाटा है, ऋषिकेश है, वहाँ पर आप सेटअप करना चाहते हैं या किसी होटल को एक्वायर करके आप उसको अपने इथिक्स के अकॉर्डिंगली मतलब चलाना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले एक क्वेश्चन, जो करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन क्या है और उसको थोड़ा इलैबोरेट करें, किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं। जो करेंट सिचुएशन की बात है, सिचुएशन बहुत ड्रामेटिकली चेंज हो रही है, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। जितने भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के जितने भी प्लेयर्स थे वो टिल अगस्त दे वर ब्लीडिंग, सब माइनस में थे, सबके हालात बहुत खराब। लेकिन सितंबर से लोगों ने निकलना शुरू किया, बाहर घूमना शुरू किया। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी में एक गजब चेंज आया, और वन कैन से इट्स अ रिवेंज टूरिज्म काइंड ऑफ, कि 2 साल से लोगों ने घूमना फिरना बंद किया था, अब वो अपने कामों को बंद किया था, अब वो निकल रहे हैं, घूम रहे हैं। दे आर ऑप्टिंग फॉर गुड होटल, कि अच्छे होटल में जाएं जहाँ हाइजीन हो, अच्छे होटल में जाएं जहाँ सर्विसेज हो। तो लोग निकल रहे हैं बाहर, पहाड़ों पे भी जा रहे हैं, प्लेन्स पे भी जा रहे हैं, हर जगह टूरिज्म बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। और जो अपना प्लानिंग है, यकीन इस होटल को तो मैं पर्सनली खुद चलाता हूँ क्योंकि हमारा ये ब्रांड इमेज दिखाता है। बट क्योंकि मैंने 20 साल इस होटल इंडस्ट्री में दिए हैं तो हमारे टीम मेंबर्स बहुत हैं, ताज के, ललित के, मतलब बड़े बड़े ब्रांड के, तो दे कैन जॉइन मी एनी टाइम कि वो हम कर पाएँ और अच्छा काम हम कर सकते हैं आगे टू ऑपरेट आवर होटल्स। जैसे आपने बोला ना, बहुत अच्छी बात आपने की कि आप जैसे मतलब आपने काफ़ी ब्रांडेड होटल्स के साथ में कहते हैं, वॉस्ट एक्सपीरियंस अबाउट दिस थिंग। जैसे आपने बोला ना कि आपने कहा कि अगर कोई अच्छी ब्रांड वाला अगर हम सब हमारे साथ आना चाहे कर सकते हैं, तो क्या आपने किसी और ब्रांडेड लोगों के साथ में मिलने की कोशिश की? मैंने मैं बात करूं, जब मैं 2008 तक
मैं ताज के साथ काम कर रहा था। उसके बाद मेरे ही एक कलीग थे अरुण त्रिखानी, तो उनकी कंपनी आई थी कर्मा हॉस्पिटैलिटी, वो मेरे साथ ताज चंडीगढ़ में। तो उन्होंने बोला देखो कौसर, मैं अपना ब्रांड खोल रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू कम एंड ज्वाइन मी, आप ज्वाइन करो मेरे साथ, एक नया 100 रूम का होटल खोलो। और हमने ये किया, हमने वो होटल खोला और काफ़ी सक्सेसफुल रहे। तो सिमिलर सिचुएशन मेरे साथ भी है, जो मेरे कलीग्स हैं, मैं किसी को भी बोलूँगा कोई मना नहीं करेंगे। अभी जैसे ताज के मेरे कलीग हैं दीपक, वो भी मेरे साथ ताज चंडीगढ़ में थे, तो उनको मैंने बोला कि आप कहाँ हो, तो उन्होंने बोला मैं सिंगापुर में हूँ। बोला आप आइए, और वर्क भी था, हम साथ में काम करेंगे। तो वो आए और वो हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि आपने नॉट हेयर ओनली, आपने क्या इसमें ऋषिकेश में भी और जितना भी खोल रहे हैं, तो आपने ये तो आपका नेशनल आपकी ब्रांडिंग हो गई है। तो कभी आपने ये सोचा कि आप अब्रॉड में जाकर गेट इट एज एन एमएनसी काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे आपकी तरीके से हो, ऐसा मतलब नहीं, आप इस तरीके आपने कभी दिल्ली में सोचा, अपने ख्याल में आपका है? नहीं ख्याल, क्योंकि शुरुआत के 15 साल मैंने इंटरनेशनल ब्रांड में दिए हैं, तो जो मैंने हॉस्पिटैलिटी सीखी है विद इंटरनेशनल पीपल। मेरे पहले जो जीएम थे मिस्टर एरिक स्वानसन, लीला पैलेस बैंगलोर में, तो वो अमेरिकन थे। ताज में जो मेरे शेफ थे वो फ्रेंच थे। तो इस वजह से काफ़ी अच्छा नेटवर्क है हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड। ख़ास के मैं अब अपनी बात करूँ तो मेरे जो 2 क्लोज एसोसिएट्स हैं, वो एक ऑस्ट्रेलिया में है और एक कनाडा में है। तो दे आर सर्चिंग फॉर दैट, लेकिन मैंने उनको बोला है एटलीस्ट मुझे 2 साल लगेंगे। और जो इंडियंस हैं बहुत अच्छी तरीके से बहुत जगह पहुँच रहे हैं। मेरे बहुत ही क्लोज एसोसिएट हैं आशीष, वो आर्किटेक्ट हैं, वो तिबलिसी में होटल बना रहे हैं। वो बार बार मुझे बोल रहे हैं कि जो तिबलिसी में होटल बन रहा है जॉर्जिया में, तो उसको आप लोग ऑपरेट करें। लेकिन अभी मैं जब तक पूरी तरह तैयार नहीं होगा, स्पेशली जब हम बात करें फॉक्सोसी की, तो मैंने पूरा 1 साल लिया टू अंडरस्टैंड द मार्केट, टू लर्न थिंग्स। तो इसी तरह तिबलिसी जाने से पहले मैंने उनसे दो साल का वक्त मांगा है कि हम समझेंगे कि वहाँ किस तरह का टूरिज्म है, किस तरह का बिजनेस है, और हम इंडिया से अगर जा रहे हैं तो उनको हम कुछ सिखा पाएँ कि हॉस्पिटैलिटी क्या होती है, क्योंकि वहाँ हालात थोड़े अच्छे नहीं हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ऑपरेटिंग होटल्स इन मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। चाहे आप कनाडा जाएं, चाहे वो आप यूएस जाएं, तो उनको हमें एज इंडियन सिखाना पड़ेगा कि काम कैसे होता है, विथ प्लानिंग, विथ प्रोसेस के साथ कैसे होता है। उनके पास बिल्डिंग बड़ी अच्छी अच्छी है, लेकिन वो ऑपरेट नहीं कर पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो स्पेशली कनाडा में मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है विपुल कुमार, तो उसने वही बोला कि सी मैं यहाँ चला रहा हूँ बट आई एम नॉट गेटिंग द राइट काइंड ऑफ सिस्टम। तो ये उसने मुझे बताया था, तो इसी भी प्लानिंग में है, विल गो फॉरवर्ड। अच्छा, आपने देखा है हिंदुस्तान के मतलब वर्ल्ड वाइड ही हुआ है भी 2 साल से चल रहा है कोविड-19 का, जो वायरस भी आया है, ये अब इसका काफ़ी खौफ भी हुआ है पब्लिक बाहर निकल, काफ़ी जिसकी वजह से आप टोटल डिस्ट्रिक्ट बहुत ही बहुत बुरा असर हुआ इसके अंदर में, हालत में ख़राब भी कर, लोग कई लोगों को रिग्रेट भी कर दिया है। बाय आई नो सम पीपल जो आई बी गुड वाज अ मिलियनर, फॉर देम इट्स नॉट वन, बट अदर पीपल इज वेरी डिफिकल्ट। उस केस में आपने कोविड-19 में आपको कैसा एक्सपीरियंस, आपने कैसा महसूस किया, और उस चीज़ को जो हालात है उसको कैसे आपने ओवरकम किया? सर एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो सारे ऐसे ब्रांडेड होटल्स है जिनके साथ आपने काम किया है, एंड यू हैव गॉट 20 years of experience with more than one. So I would like to know कि बहुत सारे होटल्स को जब आपने एज ओपनिंग की, फिर उस होटल ने प्रोग्रेस किया, आज वो एक शिखर पे है, तो वी कंसिडर यू एज द किंग ऑफ दिस होटल ओपनिंग, तो उसके बारे में आप हाउ डू यू फील अबाउट? किंग तो नहीं, एक प्री ओपनिंग एक्सपर्ट कह सकते हैं होटल का, क्योंकि हमने ज़मीन से काम किया है। मैं शुरुआत से बात करूँ, मैं कॉन्फिडेंस क्यों हुआ, मैं थोड़ा सा छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ। वे बैक इन 2001 में जब मैं मैनेजमेंट कर रहा था, तो मुझे मैरियट कोर्टयार्ड से नौकरी मिली, और उस वक्त मैं पासपोर्ट नहीं था, तो मैं गया
बेंगलोर के पासपोर्ट ऑफिस, और उस वक्त हमारे पास वो स्कूटर होता था, तो उससे हम दौड़ के पहुँचे थे। बारिश भी हो रही थी, तो हम लोग पासपोर्ट ऑफिस गए और वापस पासपोर्ट का अप्लाई किया, भैया नौकरी मिल गई है, वो भी यूएस में, चलो जाते हैं वहीं काम करेंगे। तो उस वक्त क्या हुआ कि वो स्कूटर उठाने वाले वो आए, तो मैं दौड़ने लगा रोड क्रॉस करने के लिए, तो एक कार ने मुझे हिट किया और मेरा थाई टूट गया और मैं कोमा में चला गया 6 महीने के लिए। तो 6 महीने में कोमा में रहा और उसके बाद मुझे झक मार के वापस बिहार जाना पड़ा, गया जहाँ का मैं बेसिकली हूँ। तो वहाँ मैं गया, 6 महीने मैं क्रचेस पे चल रहा था, डंडे पे चल रहा था। तो पापा ने बोला चलो तुम्हारे लिए किराने का एक दुकान खोल देता हूँ, उसी पे बैठो, चल फिर तो सकते नहीं हो। तो मैंने हिम्मत की, उस वक्त तक मैं क्रचेस को छोड़ करके डंडे पे आ गया था। मैंने बोला देखिए अब यहाँ रहूँगा तो किराने की दुकान पे ही बैठना है। तो मैंने अपना डंडा लिया और सेकेंड डे की ट्रेन की टिकट कराई और भाग गया वापस बैंगलोर। वहाँ मेरे फ्रेंड थे लीडर में, वहाँ मैंने बोला कि भाई मुझे नौकरी दिलवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि भाई आप चल नहीं सकते हो ठीक से, तो आपको रात की मिलेगी। तो मैंने स्टार्ट किया रात में। आई वॉज द होल्डमैन ग्रेजुएट ऑफ द बेस्ट कॉलेज टू बी, लेकिन क्या हुआ मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो हार नहीं माना, बोला यार रात की ही नौकरी करूँगा। फिर उस वक्त उन्होंने बोला कि भैया आपको 2200 रुपये मिलेंगे और आपको रात में आपका काम सिर्फ एक रहेगा कि रात में ग्लासेस वाइप करना है आपको। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं करूँगा। आई स्टार्टेड दैट और रात भर मैं ग्लास वाइप करता था बैठ करके लीला पैलेस बेंगलोर में। और क्योंकि खड़ा रहना पड़ता था तो पैर पूरा फूल जाता था और चल नहीं पाते थे सेकेंड में, लेकिन मैं करता था। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 6 महीने वहाँ काम किया इतने बड़े 5 स्टार में, वहाँ मैंने सीखा सब कुछ। उसके बाद मैं कैलकटा आया, कैलकटा में मैंने हयात के साथ काम किया। तब तक फिर मैं चलने लगा क्योंकि हिम्मत की थी। डॉक्टर रेड्डी जो थे जिन्होंने मुझे ठीक बोला तू चल कैसे रहा है, ताजुल यार मुझे चलना ही था, नहीं तो मुझे किराने की दुकान पे बैठूँ या होटलियर बनूँ। तो पापा ने यही चॉइस दे दिया था, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं होटलियर बनूँगा। जो पैशन है वही करें, जो काम आता है वही करें, जो चीज़ नहीं आता है वो करके आप वो काम ख़राब ही करते हो। जो आता है वही करना चाहिए, तो वही मैंने किया और हर चीज़ सीखी। जी सर, फाइनल क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। इसमें आपके एथिक्स, आपके प्रिंसिपल्स और जो टूरिज्म फर्टिलिटी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन प्रिंसिपल को आप थोड़ा सा इलैबोरेट करें। वो प्रिंसिपल जो काउंसलर इमाम जाफरी साहब की पर्सनालिटी को चार चांद लगाते हैं, जो एक इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी, वो एक प्रिंसिपल आप बनेंगे कि भाई ये प्रिंसिपल तो जाफरी साहब फॉलो करते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन पूछूं, फाइनल क्वेश्चन। तो सर एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी आपने बताई, किस तरह से आपको एक सेटअप फेस करना पड़ा, फिर आपके पास चॉइसेस थे, फाइनली आज आप एक होटलियर है। तो सर ऐसे कोई काउंसलर इमाम जाफरी साहब नहीं बनते हैं। बिहाइंड दिस देयर इज लॉट ऑफ टॉयल, लॉट ऑफ हार्ड वर्क जो आपने की है। तो सर मैं 2-3 चीज़ पूछना चाहता हूँ इन ए क्लब। उसमें एक तो आपके पर्सनल इथिक्स क्या है, आपके पर्सनल प्रिंसिपल्स क्या है, और आपकी तरफ से पूरी टूरिज्म फर्टिलिटी को एट दिस टाइम क्या मैसेज है। एथिक्स की जहाँ तक बात है बहुत सिंपल है सर। बी गुड टू योरसेल्फ, बी गुड टू पीपल, बी गुड टू गेस्ट। सबके लिए अगर आप अच्छा सोचेंगे तो ऊपर वाला भी अच्छा ही करेगा। आगे आपके जो लोग आपके साथ काम करते हैं उसके लिए आप अच्छा ही सोचिए, तो उनका प्रोग्रेस आपके साथ कैसे होगा। एथिक यही है कि वो खुश रहें, एथिक यही है कि सच्चाई से काम करें, एथिक यही है कि हम हर चीज़ सारे चीज़ों को जो प्रोसेस हमने बनाए हैं उससे बाहर ना निकलें, और कोशिश ये करें कि भाई जो आपके पास कस्टमर आ रहे हैं उनको वैल्यू फॉर मनी मिले, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको इंडियंस का खास के है कि उनको वैल्यू फॉर मनी बहुत ज़्यादा, अगर आप 100 रुपये वो खर्च कर रहे हैं तो 120 रुपीज़ उनको मिले, तो एक
काइंड ऑफ एथिक है कि आपका जो कुछ भी प्लानिंग हो, जो कुछ भी प्रोसेस हो, वो एज पर कस्टमर हो, ना कि व्हाट कस्टमर वांट, और जो कस्टमर के लिए आसान है वो करने की कोशिश करें, ना कि जो आपके लिए आसान है। तो अगर कस्टमर की आसानी का आप सोचेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ सही होगा। और जब वो मेरी प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। जब हम बात करेंगे लॉयल्टी पे, जब हम बात करेंगे इंटीग्रिटी पे, जब हम बात करेंगे ऑनेस्टी पे, तो ये सब हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग, इस पे मैं बिलीव करता हूँ कि पैसे ना आए कोई बात नहीं, लेकिन बेइज्जती ना हो। करेक्ट। आप गलती भी करते हैं, कई बार आप गलती करते हैं कि आपके साथ वाले गलत आप चुन लेते हैं मजबूरी में। तो मैं ये मानूंगा, अभी हाल में गलती हुई थी बट उसको हमने सुधारा, कि आप थोड़ा वक्त लें और हमेशा अपने पार्टनर्स सही चुनें, अपने साथ के लोग सही चुनें, बिकॉज वही आपको बड़ा बनाएंगे, ना कि आप खुद तो आप अपने प्रिंसिपल्स पे रहें तो आपके लोग आसपास लोग अच्छे नहीं हो रहेंगे तो आप बड़े नहीं बन सकते। मैं बहुत सिंपल 80-20 पॉलिसी पे चलता हूँ कि 80% आप वैसे बनते हैं जो आपके आसपास लोग हैं, जो आपके साथ लोग हैं, 20% आप वैसे बनते हैं जो आप हैं। तो मैं यही मानता हूँ कि प्रिंसिपल्स तो मेरे स्ट्रांग हों, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं, आपके साथ जो काम करते हैं, या आपके पार्टनर हैं, या आप जिनसे मिलते हो, या अपने बच्चों को जो वैल्यू दे रहे हो, तो आप स्ट्रांग वैल्यूज़ दीजिए। सक्सेस तो झक मार के आती है। आप अच्छा काम करेंगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये होटल खोला था, लोगों ने बहुत बोला, अरे बिना कपल वाला होटल है, वाई यू आर नॉट अलाउइंग अनमैरिड कपल इन द होटल। हमने अलाउ नहीं किया बिकॉज हमने फैमिली होटल खोलने का सोचा था। डेफिनेटली हम स्पेशल केस में देखते हैं, लेकिन वो विथ इंटीग्रिटी काम हो और अच्छे से हो। तो प्रिंसिपल्स यही है कि भाई क्लीन हो रहो और सामने वाले को भी क्लीन रखो। और मेन प्रिंसिपल यही है लाइफ का कि हमेशा सच्चे और ईमानदार रहो। सर आपका मैसेज क्या है टूरिज्म फर्टिलिटी को एट दिस टाइम? अभी बस आपको टूरिज्म फ्रेटर्निटी को मैसेज ये है कि आप सिर्फ मेहनत कीजिए। दिस इज़ द राइट टाइम टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन प्लीज़ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि जो वैल्यू है उतना ही पैसा लें। अभी लोगों को दिक्कत हो रही है विथ ट्रैवलिंग के, जो ट्रैवल एजेंट्स हैं या फिर जो होटल्स हैं, दे आर आस्किंग लॉट ऑफ मनी। जो उसका वैल्यू नहीं है वो ना मांगें, सो दैट अगर आपको लॉन्ग रन में स्टेबल रहना है, अगर आपको इंडियंस, और हमारा इंडिया का मार्केट इतना स्ट्रांग है कि हमें फॉरेनर्स की ज़रूरत नहीं है टू सस्टेन। इंडियंस ही इतने हैं कि आपको खड़ा रखेंगे और आपको बड़ा करेंगे। लेकिन आप उनके साथ सच्चे रहिए और अपने ख़ास के, अपने जो लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, उनका ख़ास ख्याल रखिए। अगर आप वो नहीं रख पा रहे हैं तो आप में कमी है। मैं भी कभी कभी चूक जाता हूँ, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि हम उन अच्छे लोगों को रिकग्नाइज़ करें जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, और उनको वो बताएं कि बेटा आप अच्छा काम कर रहे हो। सिमिलरली कोई गेस्ट आता है तो उनको भी बताएं, अगर कोई बहुत अच्छा गेस्ट, उनको बताएं आप हमारे लिए बहुत अच्छे गेस्ट हैं और आप भारत के लिए बहुत अच्छे गेस्ट हैं। इससे हमारे इस इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा। बस यही मैसेज है। थैंक यू सर। हो गया? यस सर। चालू है, बोलिए। रैप अप करता हूँ मैं क्लोज। हाँ, थैंक यू सो मच कोच इमाम जाफरी साहब हमसे ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे ऑफिस ऑफ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के द ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर कौंसल इमाम जाफरी साहब, जिन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया, जिन्होंने कितने सारे ब्रांड्स के साथ काम किए हैं, आज इस शिखर पे आए हैं कि आज वो अपना होटल दिल्ली में चला रहे हैं। जबकि एक टाइम पे उनको एक सेटअप आया था, उनके पास किरियाना की दुकान सलाम थी या फिर हॉस्पिटैलिटी किंग बनना था, लेकिन उनके तकदीर में ये लिखा था कि इनको एक होटेलियर बनना था, और ऊपर वाले की मदद से आज ये होटेलियर है। सर को मैं तहे दिल से और अपनी पूरी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारे इस टॉक शो द ग्रेट टॉक में ज्वाइन हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट मिस्टर दीपक रावत, एज ए ऑपरेशन मैनेजर यू वर्क इन दिस होटल, आप बताइए कि
मैं गेस्टों को ट्राई करता हूँ जो यहाँ से बाहर जाए, लेकिन 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और ये जो फोकस ऑफ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड है, आपकी पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन या फोकस ऑफ होटल है यहाँ दिल्ली में, इस होटल के बारे में आप थोड़ा बताइए कि किस तरह से क्या है। एंड मिस्टर जाफरी ने ये पहला होटल खोला है इस बैंक का, so very soon he is going to open I think lots of hotels, but उन्होंने मुझे अपने साथ बुलाया. I worked with him in Taj 15 years back. ओके, So after that he called me कि just आओ मेरे साथ काम करो. So I'm very happy he called me, and today I'm working as a operational manager under him, and I'm learning lots of things from him from Mr. Jafri, and hotel के बारे में he is doing great job. Might be will do better than other hotels in our life. एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो करंटली आपका जो होटल ऑपरेशन चल रहा है अभी, कहीं ना कहीं बहुत सारे होटल्स भी हैं यहाँ पर, आप अपने होटल को कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ हाइजीन एंड क्वालिटी? Right now we are putting our hotels under the fourth category, not five but fourth category. I'm trying to give the all services, whatever we are doing, match to level 4. थैंक यू सो मच। वेलकम टू आवर शो मिस्टर आशिक। अपने प्रोग्राम में हम आपको वेलकम कर रहे हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं कंपनी ऑफ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में। पहले तो बताइए आप कहाँ से हैं और यहाँ पर क्या जॉब है आपका? वेलकम टू आवर शो मिस्टर आशिक। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं और इस होटल में एज आपका डिजिग्नेशन क्या है उसके बारे में बताइए। होटल के बाद वो रेस्टोरेंट में क्या क्या सर्विसेज है आपकी? जो भी गेस्ट मांगता है था उसको खुद ऑर्डर करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं। अच्छा, अभी तक का सबसे बेस्ट जो एक्सपीरियंस रहा है आपका जो रेस्टोरेंट में रहा किसी गेस्ट के साथ, वो शेयर करिए। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस इसके बारे में कोई गेस्ट आया, उनको आपने सर्व किया, उनको आपकी हॉस्पिटैलिटी अच्छी लगी तो उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया, वो बताइए। सर एक गेस्ट था, उसका नाम था मनोज सर जी, यहाँ दिल्ली का रहने वाला। तो उसने यहाँ की बहुत तारीफ की है, उसने यहाँ अपनी भी जा रही है, तो उसने यहाँ देखा होटल अच्छा लगा उसको। होटल के बारे में बताइए कि होटल क्या है, कैसे चल रहा है? मैंने बहुत होटल में काम किया, मुझे यहाँ मतलब मैंने यहाँ भी काम किया, पर यहाँ से मुझे सबसे अच्छा लगा सर। तो यहाँ मैंने बहुत टाइम निकाला, बहुत अच्छी लगा सर। मैं बहुत दूर से आया हूँ, पर यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने साल से आप यहाँ पर हैं? मैं यहाँ सर 3 साल से हूँ। सर से साथ मुझे जिस सर से काम कर रहा हूँ, इसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बताइए धीरे धीरे। मिस्टर प्रमोद, वेलकम टू आवर शो द ब्रेक टॉक। सबसे पहले तो मैं आपका पूरा नाम जानना चाहता हूँ और आपका जो डिजिग्नेशन यहाँ पर वो क्या है? सर मेरा नाम प्रमोद तिवारी है, मैं यहाँ पर रिसर्च की पोस्ट कर रहा हूँ। और जितनी प्रकार की डिश बनाते हैं यहाँ पर आप, उसमें से जो कस्टमाइज होते हैं कि आपका एक स्पेशल मेन्यू होता है? सर वैसे तो मेरा डिपार्टमेंट कंपोज है, लेकिन मैं मल्टीपल कर रहा हूँ। और डिपार्टमेंट में जो मेरा मेन जो अपना वो है अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि जो कुछ ऐसी डिशेस हैं आप या कोई रेसिपीज बनाते हैं जो बाकी होटल से डिफरेंट है, वो स्पेशल है, तो उसके बारे में सर बताइए। जैसे नॉन वेज में है चिकन जी, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाला
आते हैं उसमें से कोई ऐसे गेस्ट का आप एक्सपीरियंस शेयर करें, जैसे आपने खुद ही बताया कि जो गेस्ट फिर से ऑर्डर करते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है कि उन्होंने अप्रिशिएट किया हो आपको किचन में? आए थे तो मुंबई से कोई गेस्ट है, वो मतलब अपना सेटिंग फोन करके बोले थे कि हमें आना है और वही चीज़ जिसका सही नाम है। होटल का ओवरऑल आपको क्या नज़रिया है, होटल कैसा है, प्रोग्रेस कैसे कर रहा है? बहुत अच्छा है, प्रोसेस अब बढ़ ही रहा है। थैंक यू सो Good afternoon. Welcome to our program, The Great Talk. I am Dr. Mohammad Rafiq Farouqi, Editor-in-Chief, CE Media Group, Gujarat. To my left is Director Shri Veerbhadra Singh Chauhan sir, and to my right is Event Coordinator Rukhsana Mohammad Rafiq Farouqi. Today we are going to have conversation with Mr. Piyush Agarwal sir, the Director of Focus of Hospitality Private Limited, New Delhi. And we are also going to have conversation with Mr. Sapan Agarwal, the Director of Focus of Hospitality Private Limited, New Delhi. Before I proceed, sir, I would like to welcome you both in our program. Thank you so much for joining us and sparing important time for us. To proceed, I would like to know both of you. Would you please introduce both of you to us? अपने बारे में सर आप इंट्रोडक्शन दीजिए। सर हम दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं एंड हमने अपना CA 2011 में क्लियर करा जी। सिंस 2007 हम दोनों साथ ही हैं और जो भी काम किया है हमने साथ ही काम किया है, सारी चीज़ों में हम साथ ही आगे बढ़े हैं। 2011 में हमने अपना ऑफिस शुरू करा था नई दिल्ली, उसके बाद से लेके आज तक हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड हम दोनों जो भी करते हैं whatever we do, हम वही साथ ही करते हैं। It's like a great partnership we have, not just at the work level but at the personal level also. तो यही एक है जो कि आज हमको साथ लेके आगे चल रहे हैं एक दूसरे को, और जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनको साथ लेके आगे चलना चाहते हैं। जी सर, आप बताइए। जो बोला वो वही है कि हम लोग में स्टार्टेड ये कंप्लीट किया, उसके बाद हम साथ में ही ऑफिस ओपन किया 2011 के अंदर ही। उसके बाद से हम साथ में Sir, being professionals, being engineer और chartered accountancy, आप लोगों को ये कैसे ख्याल आया कि हम ऑप्ट करेंगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाएंगे, ये बिजनेस में सेटअप करेंगे? इसका आप सेपरेटली जवाब दें। ये बहुत ही अच्छा एक सवाल पूछा है। हम किसी को भी बताते हैं कि बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप इस बिजनेस में कैसे आए जी, तो इसके पीछे क्या है कि हम खुद ट्रैवलर्स हैं, हम ऑडिट करते हैं कंपनीज की जो कि इस हॉस्पिटल बिजनेस में है। तो हमने देखा कि देयर इज ए स्कोप जहाँ पे बजटेड रेट में, एक अच्छे रेट में लग्जरी ऑफ हॉस्पिटलिटी कैसे मिल पाए। इस चीज़ को ध्यान में रख के ही हमने ये फोक्सोसो शुरू किया है। फोक्सोसो का मतलब है, इसके बहुत ही 3 मीनिंग है इसके पीछे। फूड, FO इज फूड, XO इज एक्सपीरियंस एंड SO इज स्टे। और ये 3 चीज़ें ही अपने गेस्ट को देना चाहते हैं। अच्छा खाना, एक अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा स्टे। दैट इज द 3 थिंग्स वी वांट टू गिव टू आवर गेस्ट। और इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमने फोक्सोसो शुरू किया है। कंप्लीट लग्जरी, या ए कंप्लीट लग्जरी इन ए बजटेड रेट। सर आप बताइए। सर एक्चुअली में जब से हमने स्टार्ट किया उसके बाद में हमने इसी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज के अंदर ही हमने वर्क किया है। हमने इतनी कम से कम 100 ऑडिट होगा, इसलिए सारी होटल इंडस्ट्री का हमने पूरा नॉलेज किया है। सारा वर्किंग जो भी हमें ऑडिट होगा कि मोस्टली हमें होटल इंडस्ट्री की ऑडिट होगा, इसलिए हमें पूरा इसका आइडिया है कि हाँ जी हम कैसे क्या कर सकते हैं। इसी के लिए आपको लोगों भी इफेक्ट्स हुए। Yes sir, that is food, experience and stay. I read it. Food experience. मैं भी ये में सीमस का एंड सर हमारा जो लोगो है
अब हमारा जो नाम है बेसिकली ये इतना फेमस हो चुका है कि पीपल आस्क अस कि क्या है ये, क्या है। मतलब गूगल पे हमारे 1.5 लाख व्यूज आते हैं मंथली। मैंने वो पढ़ा एफेक्ट है जैसे आपने लिखा है बच्चे फूड एक्सपीरियंस से, और नीचे आपने लिखा है लग्जरी कलेक्शन, दैट मेक्स सेंस है। सर आपसे आप क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि दोनों में साथ साथ आप CA किया, आपने अपने सेटअप को तो अब आपने जब ऑलरेडी सोचा कि आपने सोचा कि एक इंडस्ट्री है जहाँ पे मतलब आप बहुत से सर्विसेज देखते हैं मास्टर्स, इनमें से आपका ओन फील्ड है जो लिमिटेड रहता है एज पर टेक्सटाइल इज कंसर्न, तो आपका टेक्निकल आप इसमें अब आपने जब आपने सोच लिया कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर आप करेंगे तो इसमें आपका जो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है बिजनेस डेवलपमेंट के? सर बिजनेस डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो फोक्सोसो को हम एक ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहते हैं इन द मार्केट, एंड गोइंग फॉरवर्ड वी वांट टू हैव लाइक 10 प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर। हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं 10 प्रॉपर्टी एटलीस्ट। सो हमने जगह भी ढूंढी है, हमने हाईलाइट करा है सब कुछ, और हम उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। बहुत जल्दी हमारा एक दूसरा होटल भी आने वाला है, और तो यही था कि एक हर जगह पे एक गेस्ट को हर जगह पे हम अपना एक्सपीरियंस जो कि हम देना चाहते हैं वो हर एक जगह पे इनको अवेलेबल कराएं। तो अगले साल में 2022 में हम 10 प्रॉपर्टी एटलीस्ट अंडर फोक्सोसो हॉस्पिटलिटी हम करना चाहते हैं शुरू। We wish you very all the best. थैंक यू सो मच। सर आप भी इसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करिए, जैसे सर ने पूछा बिजनेस प्लान के बारे में, स्ट्रैटेजीज के बारे में। सर एक्चुअल में हम इस ब्रांड को बहुत डेवलप करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि हम नेक्स्ट ईयर की हमारी प्लानिंग है मिनिमम 10 होटल्स की। हाँ, तो हम उसके अंदर गोइंग फॉरवर्ड है कि हाँ जी हम बहुत जल्दी ये चीज़ को अचीव करेंगे, और पूरा इसका मतलब कोई भी हमारा गेस्ट ऐसा ना हो कि कोई भी नाराज़ हो के जाए, ऐसा कुछ। हमारे मतलब जो भी गेस्ट आए हैं वो सारे हैप्पी होके यहाँ से जाते हैं। हमारी अचीवमेंट की कोई भी गेस्ट मतलब रिपीट हो गेस्ट हमारे यहाँ पे आते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दैट इज द मेन थिंग फॉर अस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और सर सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इसको बिग एस्टेब्लिश ब्रांड के बराबर ले जाके खड़ा कर देंगे। बीइंग ए प्रोफेशनल, इट्स कभी भी हमारा दिमाग में ये नहीं था कि हम एक नॉर्मल एक होटल चलाना चाहेंगे। हमारे दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ थी कि इसको एज ए बजटेड लग्जरी बजटेड कलेक्शन हम एक एस्टेब्लिश करना चाहते हैं अंडर फोक्सोसो। मतलब आप जो है जिस जैसे कहते हैं जो हिंदू संस्कृति में है अतिथि और भाव, आप उस चीज़ को साक्षात्कार करना चाहते हैं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा प्रयास है आपने किया। मतलब नॉर्मली इस तरीके से कोई सोचता नहीं है, क्योंकि आज के दौर के अंदर सिर्फ इंसान सोचता है कि मुझे प्रॉफिट में किस तरीके से जाना चाहिए, पर उसकी वैल्यू नहीं दे पाता है नॉर्मली। सर हमारा फोकस यहाँ पे है ही नहीं कि हाँ जी हम प्रॉफिट लेके जाएंगे, ऐसा कुछ जी करें। आप मैं जो बता रहा हूँ मैं जो आप, लेकिन मैं तो कम से कम 2000 रेट कर चुका भाई, डिफरेंट फील्ड में किया मैंने। तो ये चीज़ बता रहा हूँ इसका जो अच्छा है फ्यूचर प्लान भी करिएगा आप दर्जे किया। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बिजनेस डेवलपमेंट है उसके लिए इथिक्स होने चाहिए, उसके लिए प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उस पर आप थोड़ा हाईलाइट करें। आप इसको अपने अकाउंट्स के रिलेटेड जोड़ सकते हैं। सर जैसे सर ने बताया कि हाँ जी ग्राहक ही सब कुछ है, तो हम उसी से रिलेटेड हर ग्राहक को, हर गेस्ट को हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। उनको हम लग्जरी सेवाएं देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम कॉस्ट को भी हम मैनेज करते हैं, उसी कॉस्ट के अंदर हम बेटर सर्विस दे सके गेस्ट को, हम पूरी वो ट्राई करते हैं। उनको हर चीज़ हाइजेनिक हो या हर चीज़ मतलब उनको ट्रांसपेरेंट हो, हम पूरी कोशिश करते हैं कि ग्राहक जो भी है गेस्ट है जो पूरा सेटिस्फाई हो। जहाँ तक होटल की जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स है या ऑडिट वगैरह करते हैं आप, या पूरे आपका जो ITR वगैरह बनता हो वो आप लुक आफ्टर करते हैं, तो उसमें आप हाईलाइट करेंगे किस तरह से वो मैनेज करते हैं आप और कितना ट्रांसपेरेंस रहता है फॉर गेस्ट। समझिए एज ए गेस्ट कभी मैं आता हूँ तो मुझे किसी चीज़ का इंक्वायरी करना है, तो कितना प्रॉम्प्टली कितना जल्दी उसका मुझे रेस्पॉन्स मिलता है। सर हम जैसे यहाँ पे परमानेंट हमारे अकाउंट्स के बंदे रहते हैं यहाँ पे, हम गेस्ट को तुरंत जो भी कुछ चाहिए होता है हम पूरी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। कुछ भी अगर उनको इशू होता है अकाउंट से रिलेटेड हम उनको पूरा सेटिस्फाई करते हैं। उनको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनको पूछना है, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी उनको कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, जो भी है हम पूरा उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। वो बीच में जो मैंने आपसे एक बात करी थी ग्रोसरी की,
सर जब मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट था गुजरात में MBA कर रहा था मैं, तो हमारी एक गेस्ट फैकल्टी आती थी बाहर से, तो उसमें उन्होंने कहा था एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उनका हर मंथ अननेसेसरली जो एक्सपेंसेस है किसी चीज़ में बढ़ी जा रहा है, तो कट इट आउट। उन्होंने सॉर्ट आउट किया कि जो दोपहर में 45 मिनट्स के लिए सभी वर्कर वर्कशॉप से जाते हैं लंच करने के लिए, ड्यूरिंग दैट पीरियड लाइट्स ऑन रहती है, कुछ मशीनें भी ऑन रहती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो बजट है बढ़े जा रहा है। तो फिर उन्होंने स्पेशल टीम उसके लिए बुलाई इस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और उसके लिए मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि ग्रोसरी डिपार्टमेंट में आपको लगा भले आप 10,000, 50,000 या 1 लाख रुपये जितना भी आप कट कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप ये गेस्ट के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, राइट। उसके अंदर उतने ही पैसे में हम एटलीस्ट गेस्ट को तो एक अच्छी सर्विसेज दे पाए। एब्सोल्युटली। हमने अपना एक्सपेंडिचर बजट सेट किया हुआ, उस एक्सपेंडिचर बजट के अंदर हम कोई कमी नहीं करना चाहते, वी वांट टू इंक्रीज दैट बजट, बट एटलीस्ट लेकिन कॉस्ट कटिंग करके हम दूसरे डिपार्टमेंट को अपना बेनिफिट दें। और एक मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, एक मेरे को एक एग्जांपल याद है सर, मैं ना वो आपको देना चाहता हूँ कि गेस्ट का क्या मतलब होता है। हम जो भी यहाँ पे देखते हैं, मैं हमेशा एक ही चीज़ के ऊपर विश्वास करता हूँ, स्टेप इनटू द शूज ऑफ गेस्ट। ओके, आप जैसे ही गेस्ट के स्टेप इनटू द शूज में होते हैं, आप गेस्ट के जैसे सोचते हैं, तो चीज़ें अपने आप अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। इसका एक मैं बहुत एग्जाम्पल देता हूँ। टाटा मोटर्स के अंदर सभी एक टाइम पे लंच करते थे, जैसे ही लंच कंप्लीट होता, लंच का टाइम होता, तो उनका एक एम्प्लॉई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो गायब हो जाते, वो डेली गायब हो जाते और किसी को पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो एक बार उनके दो तीन फ्रेंड्स थे, उन्होंने सोचा कि ये करते क्या हैं, तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे पीछे गए, तो वो जाके किसी ढाबे के ऊपर गए जहाँ पे ट्रक वाले खाना खाते हैं, उनके बीच में उन्होंने बैठ के खाना खाया और उनसे उनकी समस्याएं पूछी, उनसे अपने ट्रकों के लिए क्या एक्सपीरियंस है उनका, ये क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनसे पूछा, और उसके आधार पे वो वहाँ कंपनी में आके डिसीजन लेते थे। दैट इज, और आप विश्वास करिए कि टाटा मोटर्स के आज ट्रक्स कितने सबसे बेटर आते हैं, तो ये कारण है उस चीज़ का। तो ये जो गेस्ट की एक्सपीरियंस की बात हम करते हैं, तो ये आई बिलीव इन दैट फिलोसफी। गेस्ट की जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करके अकॉर्डिंगली हम सोल्यूशन दें उनका। वेरी गुड। उनके कोई भी रिव्यूज होते हैं तो हम उनका पूरा देखते हैं कि हाँ जी सब क्या रिव्यू है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हमको क्या मिटिगेट कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। टेस्ट करते हैं। वैसे भी कहते हैं कोई बिजनेस होता है अगर ग्राहक नहीं तो नहीं चलता। मैं आप नहीं एब्सोल्युटली। अच्छा, दूसरा क्या था, मैनेजमेंट किस लिए होता है? मैनेजमेंट में क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक्चुअली मैन 4 होते हैं। अगर ये नहीं धंधा नहीं शुरू होगा, मनी होगा, फिर उस आदमी देख जाता है मशीन, फिर उस आदमी में पहुँची ये 4 हैं, तो 4 चीज़ें हैं उनके अंदर में जो खर्चा वो जिसमें उसमें हो जाता है। अभी होटल में क्या है, आपने देखना है कि भाई यहाँ पे फूड वेस्ट नहीं होता है, लिमिटेड करें उसके इसलिए जैसे हम बताते हैं क्या होता है, आप पहले बोलते हैं कई करी बन जाती है, उसके बाद कुछ जगह है क्या करते हैं पनीर ऐसे बनाते हैं, कुछ हल्का कुछ नहीं, मतलब आपने क्या उसमें अपनी चीज़ों को वेस्टेज बताया। मेन मैंने आप जो करा ना, जब इम्प्रूवमेंट करते फिर आपने देखा कि टेस्ट वाइज भी जब देखते डिफरेंट टेस्ट आते हैं, कुछ को स्पाइस चाहिए, कुछ को बगैर से चाहिए, है ना, तो आपने करेंगे तो ये अच्छा कुछ चीज़ें आपके उसमें आती है जनरल ऑर्डर के अंदर आता है। कई बार क्या होता है, आप देखें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉमनिटी आ जाती है, तो इसमें आप निकालते हैं। राइट, टू प्रोसीड मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आई थिंक शायद आप लोगों को उसकी एनर्जी मिल गई होगी। कोविड-19 पहले मैं विक्टर सपन अग्रवाल से पूछूंगा एंड फिर सर आप ही पूछूंगा सेपरेटली। सेम क्वेश्चन, कोविड-19 का जो दौर था, आई थिंक हम ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, तो वो एक्सपीरियंस हम लोगों ने पहली बार किया, तो उसके बारे में आप बताइए कि ड्यूरिंग दैट पीरियड कैसा एक्सपीरियंस रहा सेपरेटली। पहले आप बताइए क्या। अच्छा ठीक है, पहले आप बताइए, उनको तब तक आइडिया है। सर कोविड-19 की अगर बात करें तो वैसे तो ये सभी के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि इतनी बड़ी कोई महामारी उन्होंने पहली बार देखी है। अब
सबने अपने किसी न किसी को खोया है, सभी ने इस महामारी को झेला है। लेकिन आज हम जब अगर होटल इंडस्ट्री में हैं तो हमने इस चीज़ का बहुत ही विशेष ख्याल रखा है। हमारे हर जैसे ही गेस्ट आता है उसका टेम्परेचर चेक करना, जैसे ही कोई हर मेरा स्टाफ मास्क पहने हुए रहता है 24 घंटे। इसीलिए हम अपने हर एक गेस्ट को आई वांट टू शो दिस प्रोडक्ट एक्चुअली कि ये एक प्रोडक्ट हमने स्पेशली हर गेस्ट को हम दे रहे हैं। सैनिटाइजर हमने बनवाया है अंडर आवर ब्रांड नेम कि हर एक गेस्ट को हम ये अवेलेबल करवाएं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने हर एक गेस्ट को देते हैं। इसको थोड़ा हाईलाइट करके कैमरा की ओर दिखाइए कि ये आपका खुद का ब्रांड, खुद के ब्रांड के अंदर हमने ये बनवाया है। सैनिटाइजर है। हाँ, ये सैनिटाइजर हमने बनवाया है खुद के ब्रांड में। ओके, आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि जो इनकी मैनेजमेंट है हेल्थ एंड हाइजीन को कंसिडर करके जो कोविड-19 का भी दौर चल रहा है उसके लिए गेस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैनेजमेंट ने खुद का एक ब्रांड का सैनिटाइजर किया है जो गेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप प्लीज़ इसको हाईलाइट करिए, आप इसे टच करिए। इसके लिए तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको कुछ अवार्ड मिलना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हमारा जो भारत है प्रोपोज्ड कल्चर है, सभी लोग यहाँ रहते हैं, कोई एक बिजनेस में कोई लोग दूसरा कोई बिजनेस, ओवरऑल बिजनेस डेवलप होगा तो अपने देश की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो देश की इकोनॉमी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसके लिए आप लोगों का क्या मैसेज है पूरे देश के लिए? चाहे कोई किसी भी बिजनेस में है वो आप मैसेज कोविड-19 से भी रिलेट कर सकते हैं, जनरल भी बोल सकते हैं। हारना नहीं है, हम 10 दिन होटल बंद करेंगे लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो राइट है, वही जफरी साहब ने यही कहा कि जब प्लान आउट किया और वही सेम आंसर आपने भी दिया कि बड़ा आदमी तो जाएगा बड़े होटल में, लेकिन हमारे होटल में भी वो लोग आएंगे तो सेम सर्विस मिलनी चाहिए विद इन द बजट। तो वो बताइए आप मैसेज। हमने जब ये होटल स्टार्ट किया था कोविड पीरियड के जस्ट बाद में हमने स्टार्ट किया था। हमने कभी नहीं सोचा कि हाँ जी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम पर कि हाँ जी हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे रन करेंगे। लेकिन हमने पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की और उसी की बेस पर आज हमारी रिजल्ट है कि हाँ हमारा होटल बहुत अच्छा चल रहा है। ये कोविड के बाद की जो भी टाइम है सभी के लिए अच्छा टाइम है। सभी इसके अंदर थोड़ा बहुत पेशेंस रखते हुए वो काम करेंगे, बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। आफ्टर कोविड माई ओनली मैसेज ये चीज़ अब हम इसके आदी हो चुके हैं, या एक हमारे जीवन का एक पार्ट हो चुका है कोविड। ये अब हमसे अलग नहीं रहा। हम अब सबको कोविड गाइडलाइंस को, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सबको बाहर निकलना चाहिए। और ऐसा नहीं हर एक जगह पे हमने भी और इनफैक्ट सभी ने आज के टाइम पे अगर मैं बात करूंगा कि कोविड गाइडलाइन का हर एक बिजनेस ने, हर किसी ने कोविड गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए अपने बिजनेस को कर रहे हैं और वही हमने भी किया हुआ है। हमने हर एक कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। तो आप हमारे होटल में आ सकते हैं, आप रह सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी कोविड प्रोटोकॉल, हर एक कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा हुआ है और आज नहीं तो कल सभी को बाहर निकलना ही है। लेकिन हाँ, ये अब हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ है, ये कहीं नहीं जाएगा, जो मैं विश्वास रखता हूँ। और कोई ऐसा थर्ड वेव वगैरह कुछ नहीं आएगी टिल द टाइम हम वैक्सीनेट हुए। हम फुली वैक्सीनेट हैं, हमारे होटल में हर एक स्टाफ फुली वैक्सीनेटेड है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बाहर निकलिए और अपने बिजनेस को चार चांद लगाइए। सर, यू आर ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान, राइट? तो सर फूड के बारे में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि सर ये फूड के बारे में आप थोड़ा हाईलाइट करिए। हाउ यू द टेस्ट, जो भी कोई गेस्ट आता है, चाहे गुजरात से आता है, महाराष्ट्र या किसी भी पार्ट से आता है, इंटरनेशनल से आता है, तो फूड का आप किस तरह से ध्यान रखते हैं? और अभी मारवाड़ी कम्युनिटी के लिए जब हम गुजरात में प्रचार करेंगे आपके होटल के लिए, तो उनको क्या मैसेज है कि इस होटल में क्या क्या मिलता है? जी सर, हम जो भी राजस्थान के हैं तो हमें फूड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं क्योंकि हम पूरे फूडी हैं। हमारे राजस्थानी मोस्टली फूडी होते हैं, तो हम पूरा टेस्ट का सारे टेस्ट वगैरह हम अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी हो, हम गुजरात के हो, राजस्थान के हो, हम उन्हीं के हिसाब से हम खाना तैयार करते हैं कि हाँ जी उनका
उनको अपना लोकल फूड लगे। करेक्ट, लोकल फूड वो फील करें। 3-4 डिश का नाम बताइए। आप सर फूड की बात करें, आई एम माई सेल्फ इज ग्रेट फूड। तो पहला जो कंसर्न था, मैंने पहले ही बताया कि पहला जो कंसर्न था ये था कि टेस्ट फर्स्ट। तो वो टेस्ट हमको जब तक नहीं मिला, हमने अपना शेफ चेंज किया टिल द टाइम वी फाइंड द परफेक्ट टेस्ट। और चाहे हम जो भी है, जैसे आप मैं बात करूं कि राजस्थान की हर एक चीज़ में ज़्यादा वो स्पाइस होते हैं ज़्यादा, और वहीं गुजरात के अंदर लेस स्पाइस होता है, हल्का मीठा होता है हर एक चीज़। तो उसी चीज़ को हम गेस्ट की प्रेफरेंस के हिसाब से ही खाना तैयार किया जाता है। हमने हर चीज़ के लिए अलग शेफ रखे हुए हैं। हम चाहे सेव पापड़ी हो, फाफड़ा हो, एनीथिंग, चाहे राजस्थान का लहसुन की चटनी हो, दाल बाटी चूरमा हो, हम हर चीज़ अवेलेबल करवाते हैं। कस्टमाइज फूड अभी हमने इसके लिए शेफ्स हमने एक बहुत अच्छी टीम रखी हुई है शेफ की, और वो इस चीज़ को ध्यान में रखते ही अपना खाना तैयार किया जाता है। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ, हमारा खाना 100% हाइजीनिक मिलेगा। स्पेशली हम विश्वास किस में करते हैं कि भैया टेबल ऐसे साफ नहीं होनी चाहिए, टेबल ऐसे साफ होनी चाहिए, दैट इज आवर फिलॉसफी। तो हमारा खाना 100% हाइजीनिक मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। जो भी खाने रेस्टोरेंट के मैनर्स हैं, रेस्टोरेंट के SOPs हैं, वो हम पूरे के पूरे क्रिटिकली फॉलो करते हैं उन SOPs को। तो आप टेस्ट करिए हमारा खाना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। परफेक्ट। अच्छा, बिफोर वी रैप अप, आई वुड लाइक टू इन्वॉल्व जाफी सर, आपको मैं 2 मिनट के लिए इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन तो पहले फूड के रिलेटेड मैं पूछना चाहता हूँ आपसे भी। एंड सर, आप फूड के बारे में बताइए कि जो आपका रेस्टोरेंट है यहाँ पर किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है। जैसे डायरेक्टर साहब ने ऑलरेडी बात की, लोगों ने, आप भी बात करें। लेकिन मेन जो आफ्टर कोविड है, कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो फसाई है उसको पूरी तरह मैनेज करें, और जो हैज़ार्ड एनालिसिस HACCP है उसके हिसाब से हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर चीज़ के लिए मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर होटल्स, यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा ड्रम्स दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं हर 15 दिन पे, कि भाई फूड का हाइजीन जो पीयूष जी ने बताया वो मेजर कंसर्न है। और दूसरा हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है वो तो क्रॉस चेक होता ही है और ऑडिट में। दूसरा है कि क्वालिटी ऑफ द फूड, मतलब क्वालिटी ये नहीं कि हम किसी भी मार्केट से देते हैं, वी परचेज फ्रॉम मेट्रो। तो मेट्रो का जो मॉल्स होता है हम वहाँ से लेते हैं कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जो मैंने अपने इंटरव्यू में बोला था। तो यही मेजर है। और जहाँ तक खाने के बारे में है तो पीयूष जी ने बताया है कि भैया सेव पापड़ी और जो भी कस्टमाइज़ हम कर पाए, कोशिश वही करते हैं कि हम दें, जिससे गेस्ट को डिलाइट हो, कुछ भी नहीं हो, डिलाइट करने के लिए सब कुछ भी, नुकसान भी हो बट गेस्ट शुड बी डिलाइटेड। जो हमने किया पहले 2 महीने, हमने होटल एकदम ना के बराबर रेट में, एकदम थ्रो अवे प्राइस पे होटल बेचा और सबको से पहले बुलाया, दिखाया कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद अब जा कर के हमने होटल को सही रेट पे लाया। एक बात मजे की मुझे याद है कि कस्टमर को तो डिलाइट करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी माइंड में है हमें एटलीस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करूँ कि जो फोकसों को मैं आफ्टर ए डेकेड 10 साल के बाद इंटरनेशनल ब्रांड देख रहा हूँ। बिलीव मी, अगर गूगल पे भी सर्च करते हैं ना तो नाम देखते ही ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल नाम है कोई, तो जिसको मैं विजुलाइज कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक हम फूड क्वालिटी हाइजीन की बात करें, उसके साथ साथ ये भी है कि कस्टमर को तो डिलाइट करना ही है, लेकिन साथ साथ बैकग्राउंड में जाफिर साहब है, मारवाड़ी मैनेजमेंट है, तो प्रॉफिट तो होना ही है। उसके लिए मैं कहूँगा कि सर मेरे को पहली चीज़ मैं बताऊँ कि हमारे नाम में फूड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी। करेक्ट, F इज़ फूड, तो फूड इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी। और उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए हमने वही हम कॉस्ट कटिंग हम उसी चीज़ में करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि ग्रोसरी का हमने देखा, हमने जब मंथली हम ऑडिट करते हैं तो ग्रोसरी का मेरा बिल X अमाउंट का मेरा बिल था, तो हमने सेम क्वालिटी और मैं आई वुड से कि बेटर क्वालिटी हम कैसे उसकी परचेज कर सके उससे कम खर्चे में, ताकि गेस्ट को भी जेब पे भारी ना पड़े और टेस्ट भी मेंटेन रहे, क्वालिटी भी मेंटेन रहे, हाइजीन भी मेंटेन रहे। इसके लिए सर मैं आपको एक चीज़ के लिए बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट करती है या ध्यान नहीं देती,
क्योंकि आप एक वो हिंदी में बोलते हैं ना, क्या त्रिपुंगी बोलते हैं तो आई डोंट नो हाउ टू कोट इट, लेकिन त्रिपुंगी है कि जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि हम कस्टमर को डिलाइट करें, क्वालिटी दें, तो वहाँ पर आप खुद का इन्वॉल्वमेंट जो ले रहे हैं ना, दैट पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, पर्सनल पेन इज एक्चुअली द सक्सेस ऑफ इट। इसमें मेन क्या है कि लोगों का जो है गुड पॉइंट है कि दे आर बीइंग कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग ऑन टू द सिस्टम। उसके लिए सर मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, नॉट जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द गैस ओनली। हम हर महीने एक टाउन हॉल मीटिंग करते हैं विद आवर स्टाफ, जिसमें कि हम उनके भी क्या कंसर्न्स हैं, अगर किसी को काम करने में कुछ दिक्कत आ रही है या उनको किसी भी तरीके का कोई कंसर्न है या इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कैसे करा जा सकता है, गेस्ट के रिव्यू के साथ साथ में हम अपने स्टाफ के भी रिव्यूज रेगुलरली लेते हैं। हर महीने हम एक टाउन हॉल मीटिंग जरूर करते हैं अपने स्टाफ के लिए, जिसमें कि हम उनके कंसर्न्स को समझ पाए, उनके सजेशंस ले पाए, ताकि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। और जैसे कि टाउन हॉल की ये करने के लिए आज ही है, तो आज आप 2-3 फोटोज का भी ले सकते हैं टाउन हॉल का भी, जब अभी चलेगा। अच्छा, लास्ट एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ जो मेरे माइंड में आया कि ना कि गुजरात, सिंस वी आर फ्रॉम गुजरात, दैट डज नॉट मीन वी आर फोकसिंग ऑन ओनली गुजरात, बट पूरे इंडिया के जितने भी ट्रैवलर्स यहाँ आना चाहते हैं, इस प्रॉपर्टी में आना चाहते हैं, और स्पेशली जो गुजराती है, उनको आप वेलकम करने के लिए एक मैसेज कन्वे करिए बारी बारी कि हमारा होटल कितना सेफ है, हाइजीन है, तो ऑन कैमरा यू कैन से जस्ट फॉर द प्रमोशन। यस, It's a very beautiful property. It's a very quiet and just opposite to the airport. यहाँ पे आपको 100% सेफ्टी, एक शांत वातावरण और आसपास बहुत ही अच्छा मार्केट, एयरपोर्ट के नज़दीक, और हमारा रेस्टोरेंट तो बहुत ही सुंदर है I'd say, और it's a very beautiful property. Please come once and enjoy our hospitality. Thank you. सर ने जैसे बताया कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो नियरेस्ट एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के बहुत पास में है, मेन लोकेशन पे है। एक बार जो भी एक बार आना चाहें वो एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें, एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पे, तो उनको लगेगा कि वो अपने आप ही दोबारा यहाँ पे एक बार आएंगे। सर ये जो मेन है सिक्योरिटी पार्ट, हमारे यहाँ हम प्रमोट करते हैं सिंगल लेडी ट्रैवलर को, उसके लिए स्पेशल चेक इन है, चेकआउट है, और उसको सारा एंटरटेनमेंट हमारी फीमेल स्टाफ ही करती हैं। सिंगल लेडी ट्रैवलर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज हम फैमिलीज़ को समझते हैं और हम फैमिलीज़ को ही बुलाना चाहते हैं, तभी वी हैव केप्ट लॉट ऑफ फीमेल स्टाफ जो उनसे बात करें किसी भी तरह की कोई भी चीज़, वी आर देयर टू हेल्प, वी आर देयर टू असिस्ट। तो फाइनली यही है कि वी जस्ट वांट टू गिव समथिंग लग्जरी इन अ बजट विथ अ वेरी फ्रेंडली एंड फैमिली वे। थैंक यू। Alright, thank you so much. I was with the panelist of Foxes of Hospitality Private Limited. I was in conversation with the hospitality team, the team of directors. They have given their precious time for us. And with this conversation, I would like to wrap up this interview. And before I finalize, I am once again thankful to the entire management for giving us the opportunity to speak with you, to share the food especially, then the stay and experience. I wish this entire program will not reach just in the Gujarat or in India, but to the round of the globe, so that the maximum people would come here, feel the food experience and stay. With this, thank you so much. ये आपको ये फॉक्स नंबर है ना, ये बॉलीवुड की डिशेज है।